आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम सेकेंडरी एजुकेशन और इस वक्त हम इसके यूनिट नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान। और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 1624 है। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और मैं मोहम्मद सफा खान आपसे मुखातिब हूँ। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ये क्या है? इन डिटर्मिनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ आ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन इज़ रिकोगनाइज एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेजेस, यानी सेकेंडरी एजुकेशन में इंपॉर्टेंट स्टेजेस दी गई हैं। Development countries such as United States, China, and many of the European countries are concerning all these attention on and research in exploring better solutions to the over increasing problems faced by young people at a secondary level, यानी secondary level पे वो problem face करते हैं। फिर है जी secondary education in Pakistan as in any other country cannot profitable to studies unless the needs of the society and the child are fully assessed. In order to analyze the education provided at this stage, consideration must be given to the social and cultural values of individuals and to develop of their potential talents। आगे स्टूडेंट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के वो क्या हैं। Explain the nature of secondary education period, describe the identity, the national aims of education period, identify the targets and achievements of 65 years of planning in 1983 से 1988, फिर get the understanding of perspective planning 1988 से 2003, फिर identify the targets and achievements of 75 years planning 1988 से 93 17, फिर है जी आइडेंटिफाई द 18 ईयर्स प्लान 1993 से 98, फिर है जी आइडेंटिफाई द टारगेट्स एंड अचीवमेंट डिस्क्राइब्ड इन इकोनॉमिकल सर्वे 1996 से 97 97 एंड 98, फिर आइडेंटिफाई द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 से 2010 एट सेकेंडरी लेवल। तो स्टूडेंट बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले ये कायद आज़म्स मैसेज टू पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस में किया। दिस इज़ नो डाउट दैट द फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट will and must greatly depend upon the type of education and the way in which we bring up our children as the future servants of Pakistan, यानी कि servants पाकिस्तान के उस हिसाब से उन एजुकेशन है। फिर एजुकेशन डज नॉट merely means academic education and even the appear to be one of a very poor type, यानी एजुकेशन का मतलब सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं है। अगेन शॉर्ट वी हैव टू बिल्ड अप द करेक्टरिस्टिक character of our future generation while which means higher sense of honor, integrity, selfless serve to the nation and sense of responsibility, and we have to see that they are fully qualified or equipped to play their part in the various branches of economy life in a manner which will turn honor to Pakistan। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। सेकेंडरी एजुकेशन इट्स ड्यूअल नेचर को देखने ये क्या है जी। द सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन जनरली सर्व्स अ ड्यूअल पर्पज एज अ टर्मिनल stage for a large number of students and as a preparatory stage for higher education for others। फिर है जी therefore secondary education pattern would include क्या जी shift of scientific teaching and vocational education, फिर science and mathematics, फिर इक्विटेबल डेवलपमेंट, फिर है नेशनल ट्रेनिंग स्कीम, फिर है जी फ्यूचर प्लान टारगेट्स। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ये नेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन एंड देयर रियलाइजेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979, ये क्या थी जी। द बेसिक एम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी वॉज द हॉरिजेंटेशन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान विद कंसेप्ट ऑफ, यानी कि इस्लाम के मुताबिक किस तरह से पाकिस्तान में एजुकेशन को देना। एम ऑफ द पॉलिसी क्या है? टू मीट द बेसिक लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन terms of learning tools and contents, period to upgrade the quality of higher education by bringing the teaching, learning and research process in line with international standards। फिर students lesson from the 65 years plan 1983 से 1988, इसमें क्या है? 65 years plan was launched, proclaimed education is the most vital investment for any program of socio-economic development। its neglect can cost generation, फिर यानी कि इसकी नेग्लिजेंस जो निकलॉग करती है जनरेशन को नो
uneducated society has ever achieved a higher of economy of political, यानी कोई भी दुनिया में इकोनॉमी जिसकी एजुकेशन नहीं है वो इकोनॉमी ना अपनी ना पोलिटिकल पावर अपनी बेहतर बना सके. नो एजुकेशन society has ever been left behind in the relentless march of history. फिर जी मेजर components of the program. The major components of the programs were क्या जी utilization of most to accommodate class 1 to 3 of new schools and overcrowding existing schools, यानी कि overcrowding schools का. फिर है provision of school building both for existing and shelter less schools and for class 4 से class 5 after completing class 3 from most schools. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी. ये पर्सपेक्टिव प्लान है 1988 से 2003 का. ये क्या द सेकेंडरी पर्सपेक्टिव प्लान वॉज प्रिपेयर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क डिस्कस्ड अबव द एंड in the light of the experience gained in the first perspective plan. फिर जी objectives of the perspective plan ये क्या जी to provide the entire population with access to class water. फिर जी clear water उनको दिया जाए. फिर जी to provide all the urban areas and 60% of the rural areas with the access to sewerage facilities, यानी उनको sewerage facilities हो, उनकी वॉशरूम वगैरह जो है साफ़ सुथरे हो. फिर जी to provide टेलीफोन टू अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड. टेलीफोन जो है इसकी सहूलत 50% लोगों के पास है. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी 75 ईयर्स प्लान 1998 से 1993. ये क्या ऑल दो much has been accomplished, the education system still suffer from the chronia deficiency, यानी कि 70 एजुकेशन सिस्टम में जो है मोस्टली लोग जो है वो डेफिशिएंसी जो है उससे जो है रूबरदाश होते हैं. फिर डेयर these issues will be specified address the 7th plan, यानी कि 7th plan जो है उसके लिए लाया गया. फिर अबाउट 40% ऑफ द चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि उनके पास जो एजुकेशन जो है वो नहीं है पाकिस्तान में. फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 75 ईयर्स प्लान, इसमें क्या ब्रॉडन द रिसोर्स बेस्ड फॉर एजुकेशन. फिर है जी यूनिवर्सलाइजेशन अक्रॉस द प्राइमरी एजुकेशन. फिर है जी सस्टेनेबली इम्प्रूव ट्रेनिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़. फिर स्टूडेंट्स आते हैं जी 85 ईयर्स प्लान 1993 से 1998. Substantial expansion of education facilities took place in the country since independence. फिर है जी enrollment at primary level increased from 0.77 million in 1948 to 14.414 million in 1993. फिर है about 60% polytheistic 540 colleges and 20 new universities were established. फिर है जी secondary education facilities for secondary education will be expanded to absorb the increased out from the primary schools. आगे स्टूडेंट चलते हैं इकोनॉमिक सर्वे देखने 1996 2007 97 से 1997 से 1988 का. ये क्या कहता है educational facilities have been expanded over time but has not kept pace with the requirement of a monetization policy. फिर double literacy rate which is estimated at 38.9%, 50% of the males and 27% females in 1996 and 1997 is still behind our other countries of the region. फिर है जी यानी कि पीछे अपने रीजन से. फिर है पार्टिसिपेशन रेट ड्यूरिंग 1997-1998 पार्टिसिपेशन रेट फॉर सेकेंडरी जी हायर स्टेज क्लासेस 9 से 10 तक is estimated at 34% of for each sex, 43% of the male and 25% of the female. आगे स्टूडेंट्स जी चलते हैं. ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998-2010. ये इसमें एम्स है. फिर इसके ऑब्जेक्टिव थे फिर उसमें क्या है टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड वेल एज पर परस्यूट फॉर प्रोफेशनल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन, यानी कि प्रोफेशनल और स्पेसिफिक एजुकेशन के लिए उन्हें तैयार किया जाता है. फिर सेकेंडरी एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 से 2010 तक ये हुआ. इसमें के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है. इसमें के प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस की इमेंस इम्पोर्टेंस. फिर ऑब्जेक्टिव इसमें ये टू प्रिपेयर मेक अवेलेबल सच टीचिंग लर्निंग मटीरियल विच मेक learning rewards and attractive
यानी कि उनकी लर्निंग को बेहतर बनाया जाए और टीचिंग को आसान बनाया जाए, जैसे बच्चों की लर्निंग है वो बेहतर से और अट्रैक्टिव आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ये समरी ऑफ दिस यूनिट है कि सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान एज इन एनी अदर कंट्री कैन नॉट प्रॉफिटेबल टू स्टूडेंट्स अनलेस द नीड ऑफ सोसाइटी एंड द चिल्ड्रन आर फुली असिस्टेड। यानी कि जब तक के पाकिस्तान में में जब तक एजुकेशन को फुली जो उसे अच्छा नहीं बनाया जाएगा, यानी उसे प्रॉफिटेबल नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो जो है उसकी स्टूडेंट्स को असेस्ट नहीं किया जा सकता। इन ऑर्डर टू एनालाइज द एजुकेशन प्रोवाइड एट द स्टेज कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन टू सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल एंड टू डेवलप पोटेंशियल टैलेंट। यानी कि पोटेंशियल टैलेंट है सोशल और कल्चर, उसको वैल्यू दे के इंडिविजुअल को जो है वो बेटर किया जा सकता है उसके पोटेंशियल को। फिर है जी, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैव बीन एक्सपेंडेड ओवर टाइम बट हैव नो केप्ट पेस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न पॉलिसी। यानी मॉडर्न पॉलिसी से कोई मेल नहीं खाते। डे द लिटरेसी रेट विच इज एस्टिमेटेड एट 38.9% यानी 50% मेल्स एंड 27% फीमेल्स इन 1996 इज स्टिल बिहाइंड अदर कंट्रीज ऑफ द। यानी हम फिर भी बहुत पीछे लिटरेसी रेट पे, फिर पाकिस्तान लिटरेसी रेट में पीछे, बाकी के लोग जो लिटरेसी रेट बहुत हाई है। तो स्टूडेंट्स भी हमारे ला जो हमारा चैप्टर नंबर 7 अख्ताम पर हमारा बीएड का कोर्स 8629 था। मेरे चैनल मोहम्मद सलाम को सब्सक्राइब करें और वो सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सके। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।